علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سی عبادات بندوں کے اوپر فرض قرار دی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو جانی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ جانی اور مالی دونوں ہیں۔ جانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا روپیہ پیسہ کوئی خرچ کرنا نہیں پڑ رہا، اپنا جسم خرچ کرنا پڑ رہا، بدن خرچ کرنا پڑ رہا، جیسے کہ نماز۔ اس لیے نماز امیر اور غریب سبھی کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف و صرف مالی عبادت ہے۔ اس میں انسان کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا۔ وہ پیسہ جو انسان نے جائز طریقے سے کمایا ہو تو سال پورا ہونے پر اس کی 2.5% کے حساب سے انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نہیں کہ ناجائز طریقے سے کمایا ہو تو زکوٰۃ ادا کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔ نہ، وہ پیسہ پاک ہوگا جو اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے۔ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا، کسی کا ہڑپا ہوا تو اس کے اوپر وہ واپس کرنا فرض ہے۔ اس لیے یہ بھی اس کے اندر شرط ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا جو پیسہ ہے تو انسان سال پورا ہونے پر 2.5% راہ خدا میں خرچ کرے، تب وہ اس کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے حج ہے تو وہ جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنا جسم بھی خرچ کرنا پڑتا۔ 5 دن رہتے ہیں حج کے اور بڑے اہم ہیں، بڑی محنت کے ہیں، اور وہ وہاں جا کر کہیں پتہ لگتا تو انسان کی زبان سے پھر یہی نکلتا کہ بھائی حج بھی جوانی کا ہی ہے۔ اپنے یہاں سے تو بڑھاپے میں دھکیایا جاتا حج کرنے کے لیے بھی، تو وہ بڑھیا بڈھے بھی گالی دیتے نظر آتے ہیں اولاد کو کہ ہمیں کہاں بھیج دیا، الا ماشاء اللہ، ورنہ تو زیادہ تر کے معاملات یہی ہوتے ہیں۔ چلا جا نہیں رہا جس سے، تو اب وہ کیا عرفات میں جائے گا، کیا مینا جائے گا، کیا وہ صفا مروہ میں دوڑے گا، صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا، کیا وہ طواف کعبہ کرے گا۔ سب جوانی کا معاملہ ہے۔ عبادت جو ہے یہ حج کی عبادت، انسان کو اس میں طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال میں بات یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ حج جانی بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، لیکن زکوٰۃ تو پیور خالص صرف و صرف مالی عبادت ہے۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے۔ تو اب کن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے لیے تقریباً 9 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ جو انسان مسلمان نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف و صرف ایمان والا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو آج کی تاریخ میں ایمان لے کر کے آیا اور وہ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، اور اس کے پاس اچھی خاصی دولت ہے، مالک نصاب ہونے سے زیادہ ہے اس کے پاس میں تو مال، تو اب وہ فوری طور پر ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ جب 1 سال گزر جائے گا ایمان کی حالت میں، تب اس کے اوپر اس مال کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو اس کا زمانہ کفر کی حالت میں گزرا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ اس کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہوتی ہے عاقل ہونا، یعنی عقل والا ہونا۔ پاگل اور مجنون کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تیسری شرط آتی ہے بالغ ہونا۔ بالغ جو انسان ہے، شریعت کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ وقت رکھے گئے ہیں، یعنی ابتدا میں اختلاف انتہا دونوں کی ایک ہی ہے۔ لڑکا 12 سے 15 سال کے بیچ میں جو کچھ خاص علامتیں ہیں، جیسے احتلام وغیرہ ہو جانا، یا اس کے علاوہ جو علامت جس دن ظاہر ہو جائے وہ اس دن بالغ، اور اگر کوئی علامت 15 سال تک ظاہر نہیں ہوئی تو شریعت اس کو بالغ مانتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی 9 سال سے 15 سال کے پیریڈ میں اگر اس کو حیض وغیرہ آ جائے یا اس کے علاوہ دیگر علامات، تو وہ اس دن بالغ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی علامت اس کے اندر ظاہر نہ ہو تو شریعت لڑکی کو بھی 15 سال میں بالغ مان لیتی ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، وہ 18 یا 21 یا 20 جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ ہماری شریعت لڑکے اور لڑکی دونوں کو ہی 15 سال میں تو یقینی طور پر بالغ قرار دے دیتی ہے، اور باقی جس کی علامت جس دن ظاہر ہو جائے وہ اسی دن بالغ ہو جاتا۔ 15 سال سے
पहले भी लड़का या लड़की बालिग हो सकते हैं, जिस दिन कोई अलामत उनकी जाहिर हो जाए। तो इसके लिए तीसरी शर्त है बालिग होना। चौथी शर्त है निसाब की मिकदार का मालिक हो जाना। अब निसाब की मिकदार क्या है, तो इसको गौर से समझ लें, बहुत तवज्जो के साथ में। देखिए, इंसान के पास या तो 7.5 तोले सोना हो, 7.5 तोले सोना अगर ये है तो वो मालिक निसाब हो गया। ये नहीं तो दूसरे नंबर पर आ जाइए, 52.5 तोले चांदी हो तो वो भी मालिक निसाब हो गया। अब आ जाइए कि किसी के पास में कुछ सोना है कुछ चांदी है, यानी दोनों पूरी नहीं है, 52.5 तोले से कम है चांदी और 7.5 तोले से सोना भी कम है, 2 तोले, 1 तोला, 4 तोले और इधर 10 तोले, 5 तोले चांदी है। तो ना तो अब 52.5 तोले चांदी है और ना ही 7.5 तोले सोना है। तो ऐसी सूरत में दोनों को मिलाकर के देखा जाए कि इसमें किसके जरिए से किसका निसाब पूरा हो जा रहा। तो अगर हम चांदी से ज़कात का निसाब पूरा करें तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 तोला किसी के पास में हो और अगर 52.5 तोले चांदी का निसाब अगर पूरा किया जाए तो सोने से हो सकता है, 1 तोले सोने से भी। लिहाजा जिसके पास कुछ चांदी हो, 1-2 तोले, 5 तोले और 1-1.5 तोला अगर सोना भी है तो वो इंसान मालिक निसाब है। जितना सोना है उसकी कीमत जोड़ करके वो उसकी ज़कात अदा करे। एक इंसान वो है सोना भी नहीं चांदी भी नहीं, तो अब ये देखा जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ उसको ये देखना है कि इतना माल उसके पास में है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीद ली जाए। अगर उसके पास इतना माल है तो उस सूरत में वो भी मालिक निसाब हो जाएगा, ज़कात उसके ऊपर भी फ़र्ज हो जाएगी। अब 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, मैंने आज ही पता किया था, ये हल्द्वानी के रेट हैं, सन 2023 की बात कर रहा हूं मैं ये। तो आज की तारीख में इसकी कीमत तकरीबन 36 से 37 हज़ार रुपये है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि जिसके पास में अगर सोना भी नहीं चांदी भी नहीं लेकिन 36 से 37 हज़ार रुपये हैं नकद कैश हो, या ये है कि माल तिजारत हो, उसके पास दुकान है, दुकान में इतना माल रखा हुआ है, तो वो मालिक निसाब है। जितना माल है उसका हिसाब लगाकर 2.5% के हिसाब से वो ज़कात अदा करे। अच्छा, एक इंसान वो है कि जिसके पास में थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, कुछ नकद कैश है, कुछ माल तिजारत है, सब मिलाकर के इतना हो जा रहा है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, यानी 36-37 हज़ार रुपये आज की तारीख में, तो वो भी मालिक निसाब है। मैं जहां तक अपनी इसकी तहकीक करके पहुंचा हूं, मैं ये समझता हूं कि अगर ज़कात को सही तरीके से अदा किया जाए और समझा जाए तो बहुत ना के बराबर ही लोग रहेंगे जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। बहरहाल ज़कात फ़र्ज होने के लिए चौथी शर्त निसाब की मिकदार माल का मालिक हो जाना, और 5वीं शर्त होती है फिर इसकी उस माल पर उसका कब्ज़ा भी हो। अब कब्ज़ा होने का मतलब ये है कि इंसान अगर माल तो उसका है लेकिन चोरी हो गया। अब चोरी जब हो चुका तो अब वो मालिक तो वही है लेकिन उस माल पर उसका कब्ज़ा नहीं। अब जब कब्ज़ा नहीं है तो उसकी ज़कात अदा नहीं की जाएगी। इसी तरीके से छठी शर्त आती है उस माल का कर्ज से फारिग भी होना, कर्ज से फारिग हो। इसको मैं अभी और मिसालों से समझाऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो ये छठी शर्त है कर्ज से फारिग होना। और 7वीं शर्त है हाजत असलिया से ज़ायद होना। इसको भी समझने की ज़रूरत है। हाजत असलिया में वो चीज़ें आती हैं जिनके बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। रिहाइश का मकान, इस पर ज़कात नहीं होती। आपके रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती हैं, घर में बर्तन है, बेड है, और इसी तरीके से आपकी बाइक है, समझ रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी है, लेकिन हो आपके यूज़ के लिए, आपके इस्तेमाल के लिए हो, तो इस पर भी ज़कात नहीं होती, क्योंकि ये आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ये हाजत असलिया में से हैं। ज़कात उस पर होती है कि जो हाजत असलिया से ज़ायद माल हो। इसी तरीके से 7वीं शर्त होती है इसके अंदर उस माल का माले नामी होना। माले नामी होने का मतलब ये होता है कि वो बढ़ता हुआ माल हो। सोने चांदी को शरीयत ने बढ़ता हुआ माल करार दिया और है भी ऐसा ही। हम ये देखते हैं कि पिछले साल जो रेट थे आज वो नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इजाफा ही है। और लास्ट शर्त है इसकी उस माल पर साल का गुजर जाना।
यानी जो इंसान पहली मर्तबा मालिक निसाब बन रहा है तो वो उसकी तारीख भी याद रखे, दिन भी याद रखे, वक्त भी याद रखे, डायरी बनाए और उसके बाद में उसके पास मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये आए, अब इससे कारोबार उसने शुरू करा। अब जब साल पूरा हो तो उस वक्त में वो ये देख ले कि इस 40,000 से जो बढ़ोतरी हुई साल पूरा होने तक, तो जब 40,000 पर साल गुजरेगा तो अगर साल पूरा होने से 2 दिन 5 दिन पहले भी जो माल आएगा उस पर भी साल का गुजरना मान लिया जाएगा। लिहाजा वो टोटल माल की ज़कात अदा करेगा। जो खर्च हो गया वो अलग बात है, शादी ब्याह में खर्च हो गया वो अलग बात है। अब तो बस ये देख लीजिए, खुलासे कलाम ये है कि हर साल इंसान बस ये देखे कि पूरे साल में मैंने क्या खोया क्या पाया। जो खोया उसकी ज़कात नहीं है, जो पाया उसकी ज़कात है। यानी उसका हिसाब लगाएं, बैठ जाएं एक तरह कॉपी लेकर के और उसके बाद में आप सोने की कीमत जोड़ लीजिए, कितना पता लगा 5 तोले है, उसकी कीमत जोड़ लीजिए 2.5 लाख रुपए हो गई। इसी तरीके से नकद कैश है उसको जोड़ लीजिए, आपको जो मिलने वाला कहीं से यकीनी तौर पर मिलेगा आपको उसको भी जोड़ लीजिए। इसी तरीके से दुकान में जो साजो सामान है उसका भी हिसाब लगा करके जोड़ लें। आपने टोटल कीमत जोड़ ली, आपकी बैठी मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए। अब एक दूसरा एक कॉलम बनाइए आप ये देखें कि अब हमें किसे किसे देना है, क्योंकि एक शर्त अभी बीच में मैंने बयान करी कि उस माल का कर्ज से फारिग होना ये भी ज़रूरी है। तो अब आप ये देखें कि 10 लाख रुपए टोटल हो रहा, लेकिन आपको उसमें 3 लाख रुपए किसी को देने भी हैं। तो अब 3 लाख रुपए अगर अदा कर दें तो आपके पास 7 लाख रुपए बचेंगे। तो आप 7 लाख रुपए की ज़कात 2.5% के हिसाब से अदा कर दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और भी अगर किसी को ज़कात से मुताल्लिक कोई सवाल करना है कमेंट करें आप, और आप सवाल करें, इंशाअल्लाह आपका वीडियो में जवाब दिया जाएगा। बहरहाल मसाइल सीखें, कोई मुश्किल नहीं है ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करने के बाद इंसान को जो क़ल्बी सुकून मिलता है ये बयान नहीं किया जा सकता, ये वही महसूस कर सकता है जो ज़कात अदा करने वाला होता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे आका ने ये ज़मानत अता फरमाई है कि ज़कात देने से कोई माल कम नहीं होता। लिहाजा इस वीडियो को बार बार देखें, समझें कि किन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, कि हम उस ज़ुमरे में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब तबारक व तआला मालिक निसाब हज़रात को सही माना में माल का हिसाब लगाकर ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे मुल्क से गुरबत का ख़ात्मा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।